एक बहुत ही ईमानदार ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਹਾਂਡਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਮਨ ਹਾਂਡਾ, हेमंत ਹਾਂਡਾ, राघव ਹਾਂਡਾ, कंचन, प्रणव हांडा, हेमंत, निधि, राघव, पूजा, कंचन रलन, गगन रलन, लक्ष्य रलन, दिया, ऐना, अनुज ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੀਤਾ ਭਵਨ ਮੰਦਿਰ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਹਾਂਡਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 1 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੋਣਹਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਸੁਘੜ ਅਤੇ ਸਿਆਣੇ ਸਨ। ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਿਰਲਾ ਵਿਦਿਆ ਮੰਦਿਰ ਨੈਨੀਤਾਲ ਤੋਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ। ਉਪਰੰਤ ਉਜੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆਪ ਜੀ ਨੇ DAV ਕਾਲਜ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਈਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤ, ਲਗਨ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਉન્નਤੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਖੂਬ ਨਾਮਣਾ ਖਟਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ 14 ਜੁਲਾਈ 1977 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਮਨ ਹਾਂਡਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਬੇਟੇ हेमंत ਹਾਂਡਾ, राघव ਹਾਂਡਾ ਅਤੇ प्रणव ਹਾਂਡਾ ਅਤੇ ਬੇਟੀ कंचन ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਖੂਬ ਪੜਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਹਾਂਡਾ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਸਨ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਕਈ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਹਾਂਡਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਪ ਜੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇਕ ਹਨ, ਸੰਸਕਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। सिमरो सदा अतिशय मंगल
वट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशवट हो, मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेते प्रभु प्राण तन से निकले, पीतांबरी कसी हो, छवि मन में बसी हो, पीतांबरी कसी हो, छवि मन में बसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, प्रभु प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेते प्रभु प्राण तन से निकले, उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना, राधे को साथ लाना, प्रभु प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेते प्रभु प्राण तन से निकले, जब कंठ प्राण आए, कोई रोग ना सताए, जब कंठ प्राण आए, कोई रोग ना सताए, यम दर्श नाम दिखाए, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, शांति शांति। Best brother, best husband, best father, हम उनकी कमी को कभी पूरा नहीं कर सकते, लेकिन हम उनकी यादें, उनके असूल, उनका डिसिप्लिन, उनकी एक एक चीज़ अपनाने की कोशिश करेंगे और उनको हमेशा अपने दिलों में याद रखेंगे। उनके बिना उन्होंने जो हम सबको रास्ते दिखाए हैं, उन रास्तों पर चलने की कोशिश करेंगे, उनको हम कभी भूल नहीं पाएंगे, कभी भूल पाएंगे, कभी ਉਪਰੰਤ ਪੰਡਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। अभी उनकी आत्मा की शांति के निमित्त अमृतवाणी सत्संग फगवाड़ा की माताओं बहनों के द्वारा अमृतवाणी का पाठ किया गया, जिसमें भगवान राम जी की बड़ी दिव्य चर्चा है। और उसके बाद हमारी बेटी ने एक भजन गाया कि जीवन का अंत कैसे होना चाहिए। देखो बंधुओं, हम सब लोग जानते हैं कि हम आज हैं कल नहीं हैं।
हमारे साहित्य में लिखा हुआ है कि अश्वत्थामा बलि व्यास हनुमान च विभीषण विपश्य परशुराम च सप्ते ज्योतिर्जीविन सप्ते कान संस्मरे नित्यम मार्कंडेय भाषण। ये भी चिरंजीवी हुए हैं लेकिन अमर नहीं हुए। ऐसा कोई नहीं है संसार के अंदर जो आया है वो जाएगा नहीं। जात सही लोगों मृत्यु, लोगों में जन्म मृत्यु तस्मात् परिहार्ये थे नक्कम शोचित मरस। दुख जरूर होता है, 3 जनों का दुख होता है। जो घर का एक मेंबर चला जाता है तो ये वो परिवार ही जानता है कि उसके जाने का दुख क्या होता है। हमारे विनोद जी बड़े भाग्यशाली थे। इस परिवार से मेरा आज का संबंध नहीं है, 4 पीढ़ियों से मैं इस परिवार में हूँ। भाग्यशाली इसलिए कहता हूँ कि अच्छे कुल में जन्म हुआ। लाला कृपाराम हांडा जी के वंश में, लाला कृपाराम जी के बेटे श्री मुरावाराम हांडा और गेंदामन हांडा। गेंदामन हांडा जी के 2 बेटे श्री जुगल किशोर हांडा और दूसरे भागमन हांडा और श्री गोपाल लाल जी हांडा और श्री मोहनलाल जी हांडा। सब लोग जानते हैं कि हांडा परिवार का इस समाज को क्या देना था। मैं लोगों से कहा करता था कि भाई पैसा कमाना, और लोगों ने पैसा कमाया लेकिन सेठ बनना बड़ा मुश्किल होता है। सेठ अलग होते हैं, धनवान अलग होते हैं। सेठ हमारा हांडा परिवार था जिनको मैं बहुत जानता हूँ। श्री भागमल जी हांडा बहुत दिनों तक हमारे कारपोरेशन के जो पहले कारपोरेशन में पहले कमेटी थी वो प्रधान रहे हैं। और इसी तरह से जुगल किशोर जी हांडा, उनका बहुत समाज को देना था। कोई ऐसी फगवाड़ा की धार्मिक संस्था नहीं थी, कोई सामाजिक संस्था नहीं थी, कोई ऐसी शैक्षणिक संस्था नहीं थी जहाँ पर उनका रोल नहीं था। इस प्रकार से उत्तमपुर में जन्म लेकर हमारे विनोद हांडा जी, मेरे से बहुत प्रेम था। संयोग कहिए कुछ समय पहले मैं आया और आकर के पवन हांडा जी से मिला, पूछा क्या कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि विनोद जी के साथ बैठ करके धूप सेक रहे थे। मैं कहा मुझे भी मिलना है उनसे। उनको मिलने के लिए गए, एक बार तो नहीं मिले, दोबारा हमने आया तो मिले, क्योंकि इस हांडा परिवार के लिए मेरे मन में बड़ी श्रद्धा थी। मैं चाहता था कि जैसे इनके बुजुर्गों ने जीवन दिया, विनोद जी थोड़ा सादा जीवन जी रहे थे, जैसा इनके बुजुर्गों ने समाज के लिए, हम आज देख रहे हैं कि हांडा डिस्पेंसरी है, हांडा के नाम से बहुत सी धर्मशालाएँ हैं, और हांडा जी के नाम से जो है पहले ये जो कॉलेज आज आप कमला नेहरू कॉलेज नाम सुनते हैं, ये पहला हांडा जंगल में शुरू हुआ था। इस प्रकार से गीता भवन मंदिर कटारा चौक के अंदर श्री गोपाल हांडा जी ने उसका निर्माण करवाया था। तो बहुत देन रही है हांडा परिवार की समाज के लिए। और मैं विनोद जी से कहा करता था, विनोद जी अपने बच्चों को लाया करो, उनको बताया करो, नहीं तो मैं बताऊंगा कि हांडाओं का स्वर्ण युग कौन सा था। बच्चों को भी देखिए, बच्चे वो होते हैं जो अपने कुल परंपरा को, कुल रीतियों को और कुल मर्यादाओं का पालन करते थे। ये ऐसा सादा परिवार था। एक बार वृंदावन जाने के लिए मैं बहुत छोटा था, 24-25 साल की शायद उम्र रही होगी मेरी, तो सुरेंद्र हांडा जी के माता जी कहने लगे कि पंडित जी हमने भी साथ जाना है। मैं डर गया, तो इतना संपन्न परिवार है जिनके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, कहाँ जाएंगे मेरे साथ। तो उन्होंने कमल हांडा जी के माता जी से बात की कि आप भी करो। तो कहने लगे कि हम कैसे होगा वहाँ पर, जैसे जैसे बाकी दुनिया रहती हम भी रह लेंगे, गाड़ी में जाना था। तो साथ हम बीजी कहते थे, विनोद जी के माता जी वो भी तैयार हो, और साथ उनकी बेटी रक्षा रानी जो गुरमोर होटल के मालिक का जो ध्यान है वो
से गाड़ी में चले गए तो कोसी में जब वहाँ उतरे, रात का टाइम था, सुबह मैंने देखे कि नहा धो करके शुक्रवार था, शुक्रवार की कथा कर रहे हैं, हम स्टेशन पर बैठे चादर बिछाए। इतनी सादगी थी इस परिवार के अंदर। ऐसे हमारे विनोद जी बड़े सादगी संपन्न थे। इनके परिवार में एक नौकर हुआ करता था, तो उनका कोई नाम ही देता था, सब चाचा जी कहते थे। चाचा देखो ये परिवार है। इनके परिवार के अंदर, बच्चों को मैं खास करके ही बता रहा हूँ, उनके परिवार के अंदर जब तक बुजुर्ग रहे हैं रसोई में जूता नहीं गया, ये मैंने देखा। ऐसे उत्तम कुल में हमारे विनोद जी ने जन्म लिया था। उन पर बड़ी भगवान की कृपा थी, भरपूर सुख से संपन्न जीवन जी रहे थे, सादगी वाला जीवन था। जब उनके पास कभी कभी आया करता था, कमल जी के पास आता था और कभी कहते पटेल जी कैसे आए, मैंने कहा हांडा दर्शन करने की इच्छा थी इसलिए मैं आया। तो मैं बार बार इनको कहा करता था कि कुछ करो, आपके बुजुर्गों ने बहुत कुछ किया। ऐसे अच्छे परिवार में जन्म लेकर के हमारे विनोद जी गए हैं। उनकी आत्मा को शांति प्रदान हो, इसके लिए हमारी बहनों ने अभी अमृत पानी का पाठ किया। उनके बेटे भी इसी प्रकार से हैं, मेरे पास ले आते थे कभी कभी। और उनकी धर्मपत्नी सुमन हांडा बहुत शांति वाली लड़की, हम तारीफ करते हैं कि लड़कियाँ तो ऐसी। इसी प्रकार से उनके बेटे श्री हेमंत हांडा, उनकी पत्नी लीली हांडा और राघव हांडा पुत्र अपने, उनकी पत्नी पूजा हांडा, प्रणव हांडा और बेटी कंचन रलन, तो उनके दामाद गगन रलन। ये सारा परिवार सुख समृद्धि से भरा हुआ परिवार था। लेकिन आदमी यहाँ ज़्यादा देर नहीं रह सकता। बंधु, आदमी का जीवन जो है अनित्य है, सदा यहाँ कोई नहीं रहा। लेकिन हमारा जीवन सफल भी तभी होता है अगर हम अपने लिए नहीं, अपने समाज के लिए भी कुछ करके गए। और जो ईश्वर के प्रति अभी हमारी बेटी भजन गा रही थी बहुत बढ़िया, कि आदमी का अंत समय कैसा होना चाहिए, ये याद रखो। मैं कहता हूँ कि जो चले गए बड़े भाग्यशाली थे, आज उनका सब कुछ हो रहा है। हमारा पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, जो हालात दुनिया के अंदर चल रहे हैं। ऐसा विकट समय आया हुआ है कि लोग एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के नजदीक नहीं जाना चाह रहे। ऐसा संकट आया है। अगर आज यह ऐसा बीमारी का समय ना होता तो शायद उनकी पगड़ी कसम ये यहाँ ना होती, एक दूसरी जगह। ईश्वर को हमेशा याद रखना चाहिए। ईश्वर की प्रेरणा क्या है, ईश्वर की इच्छा क्या है, वो ईश्वर ही जानता है। लेकिन हमेशा याद रखना चाहिए कि अपनी परंपराओं को कभी नहीं त्यागना चाहिए। ये परिवार था जहाँ 10-11 बजे तक पूजा पाठ ही होता था और ईश्वर के प्रति पूर्ण विश्वास था। घरों के अंदर 10-11 बजे से पहले कोई भोजन नहीं बनता था, जब तक कि पूरी तरह से ये परिवार जो था, ये जय कृष्णिया परिवार था। जब तक कि भगवान कृष्ण की आरती पूजा ना हो जाए, भगवान दत्तात्रेय का पूजन ना हो जाए, तब तक इनके घरों के अंदर भोजन नहीं बनता था। ये ऐसा परिवार था, धार्मिक परिवार। इसलिए हर बच्चों का भी कर्तव्य होता है कि अपनी कुल परंपराएं, कुल रीतियाँ, जो कुल के धर्म होते हैं उनका पालन करना बहुत जरूरी होता है। नहीं तो एक प्रकार का दोष होता है। माता पिता का सम्मान तभी होता है जब बेटा माता पिता की आज्ञा का पालन करता है। बेटे वही होते हैं, हमारे यहाँ लिखा पुन्नाम नरका चाहे जेती पुत्र। पुत्र किसे कहते हैं? जो अपने पिता का उद्धार करता है, जीवित पिता को सुख देता है और मरने के बाद भी अपने पिता के लिए श्राद्ध इत्यादि जो कर्म होते हैं या उनके सुख के लिए जो किया जाता है, तो वो पुत्र का कर्तव्य होता है। क्योंकि पुत्र का जो जीवन होता है अधिकारों से भरा हुआ जीवन नहीं होता, वो कर्तव्यों से भरा हुआ जीवन होता है। आजकल मैं कहा करता हूँ कि आगे आने वाले टाइम में लोग बच्चे पैदा नहीं करें, मजाक में रहते हैं। क्यों नहीं? आज बच्चा जो बड़ा होता है, जवान होता है, तो अपने माता पिता से कहता है पिताजी इस टाइम और मेरा ऐश करने का है, आपके पास कुछ है ही नहीं तो मुझे पैदा क्यों? क्या जरूरत थी मुझे पैदा करने के लिए? लेकिन पुराने जमाने का जो खानदानी बच्चे होते थे कहा करते थे पिताजी अब मैं जवान हो गया हूँ,
बताइए मेरे कर्तव्य क्या है। अधिकारों की खींचातानी का नाम जीवन नहीं है, कर्तव्यों के पालन करने का नाम जीवन है। वो बच्चा जो पूछ रहा था कि पिताजी अब मैं बड़ा हो गया हूँ, बताइए मेरे अब कर्तव्य क्या है, मुझे आगे क्या करना है। अगर पिता ने किसी का कर्जा देना होता तो वो पुत्र देता था, मरने के बाद भी देता था कि मेरे पिता ने कर्जा लिया इसलिए मैं दूंगा। वो जमाना था। इसलिए कुल परंपराओं का पालन करना हमारे लिए, यही तो धर्म होता है, उसका पालन करना हमारे लिए अति आवश्यक होता है। और समय हो गया, मैं ज़्यादा ना कहते हुए 5 मिनट का समय है। मैं रघुवंता जी से प्रार्थना करूँगा कि 2 मिनट के लिए पूरी परिवार के साथ साझा करें और उसके बाद जो है पगड़ी का रस्म होगी, परिवार बाहर जाएगा तो आप भी उनको आशीर्वाद देते हुए घर जाएंगे। बताओ प्रावत लोगों आज बहुत ही दुख की घड़ी में आप सारे देखो, सारे भाई बहन जानते हैं कि संसार सारा नाशवान है। जो आया सोचा थी सबको आई बात, हरेक में परमात्मा जैसा जाकर भी होना ही होना। एक तक आप जानते हैं कि राम जो रावण जो जाकर बहु प्रभाव कहो नानक के बच्चे सुपने का संसार ये भी जानते हैं। पर फिर भी जो साढ़े विचों कोई व्यक्ति चला जाए उसके जान तो बाद सानू सारे कष्ट होता है। कष्ट क्यों होता है? कष्ट इस करके क्योंकि जान वाले व्यक्ति के नाल साढ़े संबंध है करते हैं। उस संबंध के नाल का सानू सुख प्राप्त होता है। सुख साढ़े उन्हें जान के साढ़े को छिड़ जाता है। वो व्यक्ति जो साढ़े को चला गया, साढ़े समाज के रहने साढ़े परिवार के रहने किस तरीके परिवार और समाज में संबंध पैदा करके गया और किस तरीके प्रसार करके गया, जितना गलत विहार करके गया, उसका दूषण करने के बाद उसकी चंगियाइयां तो समाज के चंगियाई किशोर जो परिवार में समाज में जुड़ी है, उस किशोर याद करके समाज से परिवार दुखी हुआ है। मेरी भैन जी बैठे हैं, देखो पत्नी है, आमतौर पर धर्मपत्नी के मन में की होता है जाना ठीक है, पर मैं जरूर जाऊँ अपने घर वाले के संस्कार से जाना चलिए बैठे उन्हें दो भैन ने अपने मन की वेदना जी है अपने शब्दों राही और कविता राही साढ़े साझी की है। भैन ने की लेना हुई मेरी भैन की है, भरावां का हमेशा सुख लोचदी है। एक से को लेना था कि रखड़ी वाले दिन भरा का गुट मिलते तो रखड़ी बननी उन्होंने कुछ नहीं चाहिए। भैन की जो मन की तरफ जी है उन्होंने साझी की है, मैं महसूस कर रहा। बच्चे बैठे हैं, तेनों बड़े मुक्ति है, परमात्मा करे तेनों अच्छी है, जब सेवा करे या इस जगह में कर रहे परमात्मा की कृपा सब ठीक है। पर फिर भी इन्होंने सारे बैठे क्यों विनोद पूरी जिस तरीके सानू छड्ड के गए उदों खिलाई गए। अजे उन्हें जान की उम्र नहीं थी, हरे जान का मौका से क्यों जाना कि मरेंगे कैसा मरना हुआ सानू पता है। लोग सवेरे उठ के गए छत पे गए अपने टहल तो बाद 7 लगे 8 लगन बाद दूजे दिन सारे छड्ड के परमात्मा चल जाना। साढ़े विचों उठ के कोई बाहर जाता है हमेशा चलते सानू कष्ट होगा कि नहीं होगा। इस तरीके के नाल मैं जान तो बाद कले परिवार के सारे समाज में कष्ट सारा गैप उन्होंने की हो गया सारा ठीक है। तो आज आप सारे जो है इस परिवार में कष्ट है साझा करते हैं उन्होंने साथ में अरदास करते सारे एकत्र होना। सरकार जो पंडित ने परिवार बड़ा विस्तार रूप में दसिया। मैं परिवार वाले जो मैंने देखा परिवार को आंडा परिवार वर्गा जो परिवार पौड़े के नहीं एक बार का टाइम आप सारे जानते हैं। पकौड़ा बेसिकली में जिन्हों कपड़े निकल कहते जहाँ आंडा परिवार करके आंडा चंडा परिवार करके ये पकौड़ा जाने जाता है। क्यों जाने जाता है? क्योंकि ये आंडा परिवार ही वो परिवार है, ये परिवार हर एक लोगों ने चाहे सामाजिक पक्षों ले लो जी जिन्ना प्यार भी आले दुआले बढ़ते हैं वो तो बनता ही होना निभे हैं पूरे धरती के मनुख बन के सारे मुद्दे के असी विद्या को सरकार के पंडित रखते थे। अज पगवाड़े सब तो वड्डी इंस्टीट्यूशन वो भी साड़ियाँ बेटियां धियां भैनों विद्या देने वाली वो भी इस परिवार के
जे मैडिकल देखो फगवाड़े के छोटे छोटे होया करते थे उस टाइम से भैन बैठी है फगवाड़ा गेट वाला तो मेरे आप तो कमजोर से पता है कि बार आंडे वाले डिस्पेंसरी खोली जज करके ना पूरी आंडे होया कर माता के मत्था टेक जाना चिंतपूरी माता ने सारा एरिया सारा दुआबे का माता चिंतपूरी मत्था टेक उत्थे कितने जाना पहला आंडे की सलाह रहना तो हर पक्षों देखा जाए इस परिवार के इस फगवाड़े देने हमेशा देन रहूगी पहला तो लैके अज तक मैं सिर्फ ये गल कहना चाहूँगा कि ये विनोद जी उस परिवार के नाल संबंध है जिहड़ा डाउन टू अर्थ सी सब कुछ होंदे हैं कभी किसी का ऊंचा नीवा कभी किसी का बुरा नहीं परिवार होंगे मैंने इस परिवार में रहने का मौका मैं पढ़ते होंगे सी उन्होंने दिनों के भी असीं तपते होंगे सी इस परिवार में साडा साथ नहीं देते दसते होंगे सी परिवार में नेड़ता करते क्यों धरती ने जुड़िया सब कुछ होने के बाद फिर भी नॉवल परिवार इधर कोई हो नहीं सकता तो मैं सिर्फ इस परिवार की जी सिफत नहीं कर रहा मैं सिर्फ इस करके विनोद नहीं इस परिवार जी विभाग में ठंडा नहीं हुए दस रहे थे निके निके होंगे जे किसी का कहना साफ सुथरे कपड़े पाए सारी छेती उन्होंने स्वागत करती सी सारा उन्होंने आदर करती सी अज अगे नहीं कि एक प्रधान फगवाड़े आया मूँह के नाम को सलाम करते और पिछे पिछे कई तरह के अपशब्द बोलते हैं उन्होंने गली का सरकार होंगे डर उन्होंने आए प्रधान जी साढ़े गली में आए तो क्यों आए बच्चों ने सरकार को उनके देखना नतमस्तक बनानी यही शख्सियत मालक वो थे इस तरीके का सारा परिवार ये सारा तो उन्होंने दिते जोड़े गुण से अपने बुजुर्गों के गुण इस परिवार ने वो त्याग कर अगे फैला रहे तो मनोज जी उन्होंने एक सारे वालों और नाल ही मनोज जी के अगे अपने सारे सारों श्रद्धा समर्पित करना उसके नाल ही एक बेनती करूँगा कि तीनों बेटे बैठे हैं जो इन्होंने बुजुर्गों ने इस फगवाड़े रस्ता रखाया प्रेम का सेवा का धार्मिक रुचि वाला वो सारे गुण अपने वसा के मनोज जी सारे जरूर फैलाओ ये बनेगी प्रार्थना सरकार करूँगी और तुहानू सारे प्रार्थना जी कृपा करो कि सारे जने रल के उस प्रभु परमात्मा परमेश्वर के चरणों से अरदास करो मनोज जी की सरगदी और इस परिवार की चढ़ती कला सो कुछ कंडोलेंस जोड़े आए हैं वो मैं एक्नोलेज करदा जी प्लीज़ रामगढ़िया एजुकेशन काउंसल भैन जी का उस परिवार का इस एजुकेशन काउंसल के नाल घरेलू संबंध है एसोसीएट इंडस्ट्री साढ़े सरकार जो शर्मा जी वो इस सभा जो उपस्थित भी हैं उन्होंने वालों कंडोलेंस मैसेज जी फेडरेशन ऑफ फगवाड़ा स्मॉल इंडस्ट्रीज सुदेश शर्मा जी प्रधान जी उन्होंने वालों स्वामी शक्रानंद पलमा जी सत्कार को हरजी की सेवा कर रहे हैं प्रमुख के तौर पर उन्होंने वालों कंडोलेंस मैसेज है जी सत्कार को पीढ़ी चावला श्री कृष्ण गीता ज्ञान मंदिर के परिवार के लिए फगवाड़े उस मंदिर वालों कंडोलेंस मैसेज है सीनियर सिटीजन काउंसल कोर्ट कंपलैक्स वालों भी कंडोलेंस मैसेज है जी कुछ एक मैसेज जोड़े हैं उन्होंने मोहन लाल कुपर DAV कॉलेज इसके नाम है डीजल इंजन एक्सपोर्टर्स एसोसीएशन लघु उद्योग भारती ब्लड बैंक एंड फगवाड़ा एनवायरनमेंट एसोसीएशन फगवाड़ा गीता ज्ञान मंदिर सीनियर सिटीजन एसोसीएशन तो ये सारे ये परिवार वालों एक्नोलेज किए जाते हैं नाल सारे परिवार वालों धन्यवाद किया जाता है ऑलरेडी मेरिया भरावां दे और सरकार साढ़े परिवार टंडन परिवार खंडा परिवार वालों सारा धन्यवाद किया जाता है एक प्रार्थना है और सरकार के संदेशां ने ज्ञान लगे जितने बच्चों को आशीर्वाद देना है वो नाल ही जिन्होंने भोजन नहीं ग्रहण किया कृपा करके भोजन ग्रहण करके जाए बहुत बहुत Swami
हरे